अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ हमला करने के बाद हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में लाइव एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अज़ार। इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए एम्बेसडर मोस्ट वेलकम। Even as we Namaste, thank you. Namaste, sir. Namaste, namaste. Thank you very much. Even as we speak, Ambassador, I understand you are running out of time. I wanted to ask you, even as me and you speak, there are reports of airstrikes being done by Iran against Israel, Khyber missiles being used. Do you suspect this could spiral into a greater regional conflict? Also being heard that Iran is probably contemplating attacking US facilities in and around. Well, indeed, Israel has been attacked by Iran as we speak, a barrage of about 25 ballistic missiles. We have managed to intercept most of them, but some of them have hit. We have some casualties. The Israeli cabinet will have to decide how to operate, how to retaliate on this. But we are, we have witnessed this tonight, a very historic move by the President of the United States. We are thankful for President Trump for what he did. Think that the joint effort of Israel and the United States to remove the existential threat of nuclear bombs from Iran has been a move that is not only courageous, but I think is going to make Israel, the region, and the world a much safer place. So, sir, this is a big breaking news. Let me tell our viewers. भारत में इजरायल के राजदूत इस बात को बता रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं कि जैसे एबीपी न्यूज़ उनसे बात कर रहा है, इस वक्त ईरान के एयर स्ट्राइक्स इजरायल पे चल रहे हैं। इजरायल की कैबिनेट मिलेगी और तय करेगी कि इसका क्या जवाब देना है। एम्बेसडर, I also wanted to ask you that Iran, after these strikes, have come out with pictures saying that their nuclear installations are safe. They are not going to stop their programs of nuclear enrichment. How do you see that? Well, I think that if they continue to with their illicit activities, they will have to pay the price. At this point, both Israel and the United States enjoy full freedom of action over the skies of Iran. We're monitoring the situation, and we are ready to continue defending ourselves if Iran decides to try to sneak again out to a nuclear bomb. But I must remind you, sir, that what Israel did actually has set back the Iranian capability for years, because we have hit the facility in Isfahan as a facility of conversion that is an essential part for creating a nuclear bomb. We have hit the facility in Natanz, which is the main facility that produces enriched uranium. And we have, of course, the Americans have hit Fordow, a facility that the Iranians thought that can keep them the race for the nuclear bomb immune from any attack. So the fact that we did that and we hit dozens of other locations in which the Iranians were having nuclear activities is going to make them very hard to build a nuclear bomb. So I wouldn't take their statements with a lot of faith. सो एम्बेसडर अज़ार बता रहे हैं, उनका कहना है कि अगर ईरान फिर भी अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है जैसा कि उसने चेतावनी दी है, तो अमेरिका और इजरायल मिल करके ईरान पर और बड़े हमले करेंगे। एम्बेसडर, व्हाट डू यू मेक ऑफ चाइना एंड रशिया? देयर वर स्टेटमेंट्स बाय चाइना एंड रशिया बोथ calling upon America, Israel not to, more specifically America, not to intervene militarily now that they have done. Do you suspect China and Russia can militarily intervene in support of Iran, or is there anything that Israel would want to tell them? Well, I don't know what will happen, but what I can say is that neither Russia nor China have been threatening the use of military force. I think that President Putin yesterday was pretty clear regarding how he regards the security of the state of Israel. This move is a bold move by the President of the United States. He has shown leadership. He has proven and showed to the world that he has to be taken seriously, that no rogue regime, like the radical Islamic regime of Iran, can pursue a nuclear weapon without bearing the consequences. And how about China, Ambassador? Well, it remains to be seen. I think that China, although it has been pretty supportive of Iran in different ways, it hasn't told us or anybody else regarding their intentions to get involved militarily at this point. You expect they will not intervene militarily, sir?
Well, I certainly hope so, and I don't have any basis to believe that based on their past statements. एम्बेसडर रुविन अजार का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि रशिया के जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन का बयान आया था कि वो मिलिटरीली इंटरवीन नहीं करेंगे, उन्होंने कहा था कि इसको किसी तरह से शांति बहाल करने की ज़रूरत है। चाइना ज़रूर ईरान की मदद कर रहा है, ऐसा एम्बेसडर का कहना है, लेकिन वो ये उम्मीद करते हैं कि चाइना ये कदम नहीं उठाएगा। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन एम्बेसडर, आई वांटेड टू आस्क यू, इज देयर एन एलिगेशन इज बीइंग मेड आउट अगेंस्ट इजराइल एंड अमेरिका that there is probably a greater design of regime change in Iran. I'm sorry, I apologize. In Iran, is there a greater design for a regime change in Iran? And also, is there a window of peace, sir? Because we saw United Nations Secretary General condemning the attack carried out by US against Iran. I think there is a window of peace. Israel has determine the aims of its operation. We have only two aims: to remove two threats of extermination that were emanating from Iran's military nuclear program and from Iran's ballistic missile program. We have dealt with both, and now, following American action and the American peace offer, there is an opportunity to go back to diplomacy if the Iranians choose to do so. If they choose to continue military action, they will have to bear the consequences. So, बड़े सख्त बात. Thank you very much, Ambassador, for joining us. I know you're running out of time. You have to talk to other people. Thank you very much for joining with ABP News exclusively. आखिरी बात बहुत महत्वपूर्ण कही है भारत में इजराइल के एम्बेसडर ने. मैं आपको बता दूं कि अगर ईरान अभी भी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का रास्ता छोड़ता है तो एक विंडो है निगोशिएशंस का, डिप्लोमेसी काम कर सकती है. अगर ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ हमले जारी रखेंगे. एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, ईरान पर इजराइल का हवाई हमला शुरू हो गया है. ईरान के मिसाइल ठिकानों पर अटैक किया है इजराइल ने. ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स पर हमला किया है. तो जो ईरान ने किया उसके बाद अब जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से भी की जा रही है. ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स पर अटैक किया है. हवाई हमले शुरू हो गए इजराइल के ईरान पर. मिसाइल ठिकानों को उसने निशाना बनाया कई अलग अलग जगहों पर, लेकिन इससे पहले ईरान ने मिसाइलों की बौछार की है इजराइल पर कई जगहों पर, जिसमें हाइफा है, तेल अवीव है, यरूशलेम है, और इन शहरों की कई अलग अलग ठिकानों पर निशाना साधा गया है. और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, इजराइल पर हमले को लेकर ईरान का दावा. इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है. ईरान ने 2 राउंड में मिसाइल अटैक किए हैं. तो ईरान बड़ा दावा अपने इन हमलों को लेकर कर रहा है कि इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उसने हमला किया है, उसने अटैक कर उस एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाया है, निशाना साधा है. ईरान का बड़ा दावा अपने हमलों को लेकर जो वो ईरान पर कर रहा है. एक एक कर जो मिसाइलें दागी जा रही है ईरान की तरफ से, भले इजराइल उसका जवाब दे रहा हो, लेकिन दोनों रुक नहीं रहे. दोनों ही तरफ से हमले लगातार हो रहे हैं. ईरान ने 2 राउंड में मिसाइल अटैक किए हैं. जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 2 अलग अलग राउंड के जरिए उसने इजराइल को निशाना बनाया और नुकसान पहुंचाया है. और इसी बीच देखिए, एबीपी न्यूज से बोले भारत में इजराइल के राजदूत. ईरान पर इजराइल का एयर स्ट्राइक जारी है. हमने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका लगा है. परमाणु कार्यक्रम नहीं रुका तो ईरान पर और हमले होंगे, उन्होंने यह भी कह दिया है साफ. और कहा कि उम्मीद है कि रूस और चीन इसमें दखल नहीं देंगे. ईरान ने हमला नहीं रोका तो फिर उसे इसकी कीमत चुकानी होगी. तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर. और आशीष जी, आपने ही थोड़ी देर पहले जिस तरीके से बात की एम्बेसडर से, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर ईरान नहीं झुका, नहीं पीछे हटा, उसने अपने हमले नहीं रोके तो फिर उसे भारी कीमत चुकानी होगी. और हम देख भी रहे हैं कि हवाई हमले किए भी जा रहे हैं. खबरें यही आ रही हैं. बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोलकर गए हैं एबीपी न्यूज पर. उन्होंने कहा है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, चेतावनी दी है कि अगर ईरान पलटवार करता है तो मोर प्रिसाइज और इजिली अमेरिका हमला करेगा. इजराइल का ये कह देना कि इजराइल भी लगातार ईरान पर और हमले तेज कर देगा अगर ईरान इस तरह से एयर स्ट्राइक्स. देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि जब हम उनसे बात कर रहे थे तब जो हम लगातार खबर दिखा रहे हैं, ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा था. और उन्होंने एक और बड़ी बात बोली कि इजराइल सरकार की जो कैबिनेट है वो ये तय करेगी कि अब हम ईरान को किस तरह का जवाब देने वाले हैं. यानी कुछ देर में पॉलिटिकल बड़ी हलचल भी वहां पर होगी और वहां से खबर मिलेगी हमें कि किस तरह का स्ट्राइक्स इजराइल करने वाला है ईरान पे. और साथ में अमेरिका मिलकर के अब किस तरह की जवाबी कार्रवाई करेगा. खुदा न खास्ता अगर ईरान अभी इजराइल पे हमले कर रहा है, अगर अमेरिकन फैसिलिटीज को टारगेट करता है तो ये चीजें और ज्यादा स्पाइरल हो सकती है. मुझे लगता है ये युद्ध और भी कहीं ज्यादा बढ़ सकता है.
युद्ध बढ़ता हुआ दिखाई दे भी रहा है। आरती टिक्कू जी भी हमारे साथ हैं। आरती जी, जिस तरह से इजराइल ये कह रहा है कि अब इसमें ना तो रूस दखल दे ना चीन दखल दे, वरना बहुत भयावह अंजाम होंगे। अभी थोड़ी देर पहले इजराइल के जो एम्बेसडर थे वो ये साफ कह चुके हैं कि अब जिस तरह से ईरान जो हरकतें कर रहा है उसकी कीमत उसे भारी चुकानी पड़ेगी। और वो दिख भी रहा है क्योंकि हवाई हमले ना तो इजराइल की तरफ से रुक रहे हैं और ईरान भी हालांकि लगातार पलटवार कर रहा है, हमले कर रहा है। देखिए, ईरान तो लगातार हमले सह ही रहा है और ईरान में जो नुकसान हुआ है वो इनफैक्ट दिखा भी रहे हैं। ऐसा उन्होंने कोई अटैक जो इजराइल ने ईरान पे किया उसको छुपाया नहीं। इनफैक्ट वो खुलेआम हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं और ईरानियन मीडिया लगातार उसको दिखाया जा रहा है। लेकिन जो इजराइल में हो रहा है, क्या इजराइल दिखा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है इजराइल को ईरानियन स्ट्राइक्स की वजह से? उसकी हमारे को जानकारी बहुत कम मिल रही है और हमको सही अंदाजा नहीं है कि हाइफा में कितना नुकसान हुआ, बाकी टेल अवीव में कितना नुकसान हुआ। लेकिन बात यह है कि अगर ये जो धमकी दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प कि ईरान को बहुत नुकसान होगा, ईरान वो नुकसान लेने के लिए तैयार है। इनफैक्ट वो बहुत लंबे अरसे से इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ईरान अभी बना है और अभी इस सब में घुसा है। अगर आप देखें, जो मैंने पहले भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोसादेक के टाइम से जब यूएस ने पहला कू करवाया मोसादेक के खिलाफ और शाह को वहां बिठाया, तो वहां से शुरू होती है और लगातार ईरान कॉलोनियल या इंपीरियलिस्टिक जो एजेंडा अमेरिका का रहा है मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में, उसको लगातार चैलेंज करता आ रहा है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, मुझे ये नजर आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा अगर शांति नहीं होती है, अगर ईरान रिटेलिएट। मतलब आप कह रही हैं कि ईरान पूरी तैयारी के साथ इस युद्ध में उतरा है और उसे बिल्कुल भी हल्के में ना लिया जाए। आप रहिएगा मेरे साथ। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के हमले के बीच ईरान का ये बड़ा बयान, ये कहते हुए कि इजराइल और अमेरिका से हार नहीं मानेंगे। तो ईरान ने एक बार फिर से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो ना पीछे हटेंगे और ना ही हार मानेंगे। साथ ही ईरान की तरफ से यह भी साफ किया गया कि जो भी हमले हो रहे हैं, जो आक्रमण हो रहे हैं, उसका जवाब दिया जाएगा और ईरान जवाब दे भी रहा है, जो हम देख रहे हैं। देखिए, ईरानी सेना प्रमुख ने यह बयान दिया है इन हमलों को लेकर, यह कहते हुए कि हम हार मानने वाले नहीं हैं, ना इजराइल से हार मानेंगे और ना ही अमेरिका से हार मानेंगे, और हर हमले का जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। और आशीष, वो दिख भी रहा है। मतलब ईरान जिस तरीके से, पहले भी ऐसा नहीं है कि इस तरह की बात वो पहली बार कर रहा हो, पहले भी कह चुका है और उसके बाद से उसके हमले रुक नहीं रहे हैं और एक बार फिर वो कह रहा है। और ये तो ईरानी सेना के प्रमुख की तरफ से अब ये बयान है। देखिए, दो इंडिपेंडेंट नेशंस की पहले जो लड़ाई शुरू हुई है उसमें कौन सा देश ज़्यादा मिलिटरीली मजबूत है, कौन उससे थोड़ा कमज़ोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मिलिटरीली कमज़ोर हो वो रिटेलिएट नहीं करेगा, जवाब नहीं देगा। ईरान ने ये कहना कि ईरान पहले से प्रिपेयर्ड था, ईरान को पता था। देखिए, इस बात को मानना तो पड़ेगा मौजूदा परिप्रेक्ष्य में कि इजराइल के हमले में जो मेन लाइन ऑफ डिसीजन मेकर्स, टॉप लीडरशिप है, वो एक एक करके एलिमिनेट की गई है। तो अगर ईरान इतना प्रिपेयर्ड होता तो रोक क्यों नहीं पाया? इजराइल की माइट मिलिटरीली ईरान से ज्यादा है, ईरान की कमर तोड़ी जा चुकी है, अब इसमें अमेरिका घुस गया है। एक सीमा तक ईरान एक नेशन के तौर पर जवाब जरूर दे सकता है, मिसाइल्स जरूर मार सकता है, और अगर इतना प्रिपेयर्ड था तो जब उसकी लीडरशिप एलिमिनेट की जा रही थी तो इजराइल को वैसा नुकसान ईरान क्यों नहीं पहुंचा पाया? मेरा कहना सिर्फ ये कि जरूर रिटेलिएट करेगा। इतनी हिम्मत साल दर साल उसने दिखाई है। सन 1980 से अमेरिका से दुश्मनी पाल रखी है, अमेरिका के सैंक्शंस झेल रहा है, फिर भी अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट आगे बढ़ाया हुआ था। जरूर कुछ सोच रखा होगा कि ऐसी स्थिति आती है तो वो कैसे मिलिटरीली इसको एड्रेस करेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखिए कि किसने किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मुझे लगता है कि अभी इजराइल को जो अमेरिका का समर्थन मिला है, उसके बाद ये जो अलाइनमेंट है, ये जो नेक्सस है, ये बहुत स्ट्रांग है मिलिटरीली। ईरान को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। हाउएवर, ईरान ने माफ कीजिएगा अपनी मंशा दिखा दी। अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज बताई कि कैसे उसने कहा है कि वो पीछे नहीं हटने वाला और वो जवाब देगा। किस स्केल पर देगा, पहले वो हमें देखना होगा।
आरती जी, और जो यहाँ पर कह रहे हैं आशीष, बिल्कुल सही बात है कि ईरान भले ही अपना आक्रामक रवैया दिखा रहा हो, आक्रमण जिस तरीके से उसकी तरफ से हो रहे हैं, लेकिन ये बात तो सच है ना, ये तो फैक्ट है कि इस युद्ध में कौन कहां पर खड़ा है, कितनी मजबूती के साथ खड़ा है, किसे कितना नुकसान अब तक हो चुका है, ये तो साफ नजर आ रहा है। ईरान भले ही कह रहा हो कि हम चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन नुकसान उसे बड़े लेवल पर हुआ है। कई टॉप कमांडर्स उसके इस युद्ध में अब तक मारे जा चुके हैं। बिल्कुल, ये बात तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईरान ने नुकसान सहा है। लेकिन मैं आपके दर्शकों को याद दिला दूं कि जब अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर, जिसके पास मिलिट्री माइट भी है, न्यूक्लियर पावर भी है, इकोनॉमिक पावर भी है, और ओवरऑल जो पॉलिटिकली भी सबसे दुनिया का मजबूत देश है, लेकिन उसके बावजूद इराक वॉर में क्या हुआ? इराक वॉर में जब अमेरिका घुसा और इतनी जो बम्बार्डमेंट की इराक की, उसके बाद भी अमेरिका वहां से जीत के निकला नहीं। अफगानिस्तान में 20 साल अमेरिका लड़ा और उसके बाद भी अमेरिका वो नहीं जीत पाया। इनफैक्ट जितने भी ऑब्जेक्टिव्स लेके चला था अमेरिका, वो इराक हो या अफगानिस्तान में, उसमें फेल हुआ। इराक में तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले ही नहीं। इसका मतलब कि एक झूठा प्लॉय था, एक पूरी कंस्पिरेसी थी इराक को बर्बाद करने की। लेकिन उसके बाद अगर आप अमेरिका की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखें ओवरऑल पिछले 20-25 सालों में, इतना बड़ा सुपर पावर होने के बाद आज ट्रिलियंस ऑफ डेट जो है अमेरिका के कंधों पर है, और हम अमेरिकन एम्पायर का डिक्लाइन जो है वो सामने सामने देख रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथ ही मैं ये कहूंगी कि ईरान भी, आप देखिए कि अफगानिस्तान के पास ना तो मिलिट्री माइट था, ना तो न्यूक्लियर पावर था, ना ही उनकी कोई इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी, ना ही उनको कोई सपोर्ट था बड़े लेवल पे किसी का भी। लेकिन तालिबान ने इतने लंबे समय तक अमेरिकन ट्रूप्स के साथ लड़ाई करके उनको, अमेरिका को अफगानिस्तान में जीतने नहीं दिया। वैसे ही ईरान भी तैयार है कि वो लंबे अरसे तक ये लड़ाई लड़ सकता है। उन पे, ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसपे सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हैं दुनिया में, तो उन सैंक्शंस के बावजूद जो जिस तरह की स्ट्राइक्स कर रहा है ईरान, कोई मजाक नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। क्या किसी छोटे देश में इतनी क्षमता हो सकती है कि इतने सैंक्शंस हुए, इतना कुछ उनके खिलाफ हुआ, अमेरिका के लगातार प्रेशर बनाए होते हुए भी उन्होंने जो रिटेलिएशन कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, मुझे नहीं लगता है ये कोई मामूली बात है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि पूरे मिडिल ईस्ट में अगर कोई आंख दिखा रहा है अमेरिकन सुपर पावर को, उनके इंपीरियलिस्टिक एजेंडा को, देखिए अंत में ये सारी लड़ाई रिसोर्सेज की है। ये सारा झगड़ा ही जो है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो ना तो अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर है, ना ही वो जो ऑयल पेट्रो डॉलर इकोनॉमी अमेरिका चला रहा है कई सालों से, दशकों से, उसमें भी वो उनकी नहीं मानता। तो वो सारा कुछ रेजिस्ट करने पे चैलेंज लगातार करता रहा ईरान। मुझे नहीं लगता इसको हमको अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, अंडरमाइन करना चाहिए। तभी मैं कह रही हूँ कि अगर ईरान ये फैसला करे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जिसकी जो सबसे कम जहां पे विड्थ है वो सिर्फ 35 किलोमीटर, वो इजीली ब्लॉक कर सकता है, और उससे जो प्रेशर पूरी दुनिया पे पड़ेगा वो कोई मामूली चीज नहीं होगी। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इजराइल के पास न्यूक्स है। इनफैक्ट इजराइल सिर्फ एक कंट्री है पूरे मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, किसी और के पास नहीं है। इजराइल पे इतनी बन पाई, इनफैक्ट अगर आप देखें पूरे इतिहास में सिर्फ अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स चलाए हिरोशिमा और नागासाकी पे। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान जंग के बीच ब्रिटेन की अपील, जंग छोड़ बातचीत करे ईरान। ब्रिटेन के पीएम की ओर से कहा गया है कि जंग से पीछे हटे और बातचीत करे ईरान, कूटनीति से समस्या का समाधान निकालें ईरान। ये ब्रिटेन की ओर से कहा गया है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है, ईरान को एटमी ताकत बनने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। इस बात का जिक्र करते हुए ब्रिटेन के पीएम यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इजराइल ईरान के बीच में जंग लगातार जारी, आज 10वां दिन है और इस बीच ब्रिटेन की अपील है ईरान से, जंग छोड़ के बातचीत करे ईरान। ये कहा गया है ब्रिटेन के पीएम की ओर से, और साथ ही कूटनीति से समस्या का समाधान निकाले ईरान, ये भी कहा गया है।
और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। ईरान को एटमी ताकत बनने की इजाजत नहीं दे सकते, इस बात को भी उन्होंने दोहराया है। तो ब्रिटेन की ओर से यह अपील की गई है ईरान से। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ईरान का भी साथ दे रहे हैं और बहुत ऐसे जो इजराइल का साथ दे रहे हैं। यहाँ पर इजराइल ईरान जंग के बीच ब्रिटेन ने ये ईरान से अपील की है कि जंग छोड़ के बातचीत करे ईरान, कूटनीति से ही समस्या का समाधान निकलेगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, ईरान ने यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिखी है। ईरान ने अमेरिका के हमले पर आक्रोश व्यक्त किया है। इजराइल अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा। ईरान की ओर से कहा गया जो हमला किया गया कि अमेरिका की ओर से उस पर ईरान ने अपना गुस्सा व्यक्त किया कि आक्रोश जताया कि इजराइल अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, कानून को तोड़ा। इजराइल अमेरिका इसका अंजाम जरूर भुगतेंगे। ईरान की ओर से ये बात कही गई है, जो चिट्ठी लिखी गई है यूनाइटेड नेशंस को। ये बड़ी खबर, ईरान ने यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिखी और इसमें अमेरिका के हमले पर गुस्सा व्यक्त किया गया कि आक्रोश जताया गया और ये कहा गया ईरान की ओर से कि इजराइल और अमेरिका ने जिस तरीके से हमले किए हैं हमारे अलग अलग शहरों में, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा गया है। इजराइल अमेरिका इसका अंजाम जरूर भुगतेंगे, इस बात को दोहराता हुआ ईरान। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के हमले पर इराक की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। ईरान ने ईरान पर हमले की निंदा की है। इराक की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां पर ईरान पर जो हमला हुआ कि उसकी निंदा की गई है इराक की ओर से। हमले से क्षेत्रीय शांति भंग होगी, ये इराक ने बात कही है। तो यहां पर ईरान का समर्थन किया गया है इराक की ओर से, और जो हमले हुए हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर, उसकी निंदा की गई है। साथ ही यह भी कहा गया कि हमले से जो क्षेत्रीय शांति है उसको नुकसान पहुंचेगा, वो भंग होगी। तो दोनों ही देश आर पार के मोड में हैं, इजराइल और ईरान। और इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आपको हम बता दें, अमेरिका के हमले को लेकर सऊदी अरब का भी बयान सामने आ गया है। सऊदी अरब ने कहा है कि शांति के लिए सभी देशों का साथ आना बहुत जरूरी है। सऊदी अरब का यह बयान, मिडिल ईस्ट में स्थिरता के लिए पहल करनी होगी, ये सऊदी अरब की ओर से बात कही गई है। ये बड़ी खबर, अमेरिका के हमले को लेकर सऊदी अरब का ये बड़ा बयान है। अमेरिका ने जो अटैक किया ईरान पर, उसके बाद ये बयान सऊदी अरब का और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कहा गया है कि शांति के लिए सभी देशों का साथ आना इस वक्त बहुत जरूरी है और साथ ही मिडिल ईस्ट में स्थिरता के लिए पहल करना होगा और पहल करने की आवश्यकता के इस वक्त सऊदी अरब का ये बयान। आज 10वां दिन ईरान इजराइल के बीच में जंग लगातार जारी है। दोनों ही एक दूसरे के अलग अलग शहरों पर लगातार हवाई हमले कर रहे हैं। भारी नुकसान हुआ है इजराइल और ईरान में, और इस बीच सऊदी अरब का ये बड़ा बयान है जो दिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हमले को लेकर सोनिया गांधी का पोस्ट आया है। कांग्रेस ईरान पर हमले की निंदा करती है, सोनिया गांधी की ओर से बात कही गई है। इससे युद्ध और भड़कने की आशंका बढ़ी। सोनिया गांधी ने कहा क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालकर सैन्य कार्रवाई हो रही है और ईरान में सुनियोजित तरीके से हत्या की जा रही है। सोनिया गांधी की ओर से ये पोस्ट किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने ईरान पर हमले की निंदा की है और जिस तरीके से वहां पर हमले हो रखे हैं उसके बाद ये कहा गया है सोनिया गांधी की ओर से कि इससे युद्ध और भी भड़कने की आशंका है। क्षेत्रीय जो स्थिरता है वो खतरे में इससे पड़ सकता है और ये सैन्य कार्रवाई जो वहां पर हो रही है वो इसी मंशा से, इसी मकसद से की जा रही है कि क्षेत्रीय स्थिरता को भंग किया जा सके। ईरान में सुनियोजित तरीके से हत्याएं हो रही हैं, वहां पर जो सिविलियंस हैं उनको निशाने पर लिया जा रहा है। सोनिया गांधी की ओर से ये पोस्ट किया गया और उन्होंने एक बार फिर से ये साफ किया है कि इस युद्ध में, इस जंग में कांग्रेस पार्टी ईरान के साथ खड़ी है।